Hi, Jai Shri Krishna. I'm Rohit Verma. Subscribe to Siddharth Kannan YouTube channel now. Moving on, आप relationships में रहे हैं. You've been in relationships with Bollywood actors, male actors. क्या वो लोग openly बोलते हैं कि वो bisexual है या gay है? क्या है? See, I believe that everybody is a bisexual. You know, everybody wants to experience. Nobody is straight today. Okay, some people are very open about it. Some people are not open about it. Okay, some people are very bold and unapologetic like me. Some people are not bold. They do it in a closeted. So obviously, I have been to a relationship. I will not deny the facts because. But also, you know, as a being a queen, being into my own skin. See, being a queen, I play a lot of price over here. Okay, like a lot of people, the acceptance in the society is not there. Obviously, you know, everybody don't have balls in their pants to accept a queen's hand in the public place. Okay, I have been to a relationship. यहाँ पे ऐसे Bollywood big stars हैं जो hotels में नौकरी करते थे, उनको मैंने उठा के like you know I got their portfolio done. उनको मैंने मेल कॉन्टेस्ट में मैंने उनको पार्ट दिलाया हूँ एंड देन नाउ दे आर सुपरस्टार्स नाउ एंड दे डोंट एक्नॉलेज ऑलराइट बट इट इज़ ओके बिकॉज इट्स आई थिंक टू ईच टू हिज ओन. सबके अपने अपने कर्मास होते हैं यू नो एंड सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, सबके अपनी अपनी एक जर्नी होती है. मैं हमेशा उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव बोलता हूँ. पर एक चीज़ मैं बहुत कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स हुए हैं इन द पास्ट टिल टुडे they all love me. Till today they all in touch with me. और हमेशा ये बोलते हैं कि काश तुम लड़की होती, तुमसे अच्छी बीवी कोई नहीं होती. Because I'm a kind of person, I am very modern and very liberal. I know how much to spread my legs onto my bed sheet. I have no problem, Sid, my boyfriend sleeping with 100 men or 100 women. I have no problem. The only problem I have got, I can't tolerate lies. So आप कह रहे हो इस वक्त वो certain Bollywood stars जो इस वक्त heterosexual जिंदगी बिता रहे हैं वो deep down आपके साथ relationship में रहे हैं जी. वो one night stands थे या proper? It's a proper relationship. Proper relationship. महीनों. Yeah, we were living in a living relationship. Okay. My God. So like एक तो थे मेरे साथ, बहुत आपको बताऊंगा, आए वो, okay, मेरे साथ रहे, एक साल हमारा रिलेशनशिप था. ओके एंड अचानक से उनको बहुत काम मिलने लगा इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा एड्स करने लगे, ये करने लगे, हर फैशन वीक्स में वॉक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. फिर वन पॉइंट जल्दी जल्दी आके अपना बैग पैक करने लगे, सब कुछ रखने लगे. अरे मैं जा रहा हूँ. कहाँ जा रहे हो? मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए. तो कहते हैं कि नहीं मैंने ना दूसरा घर ले लिया है क्योंकि मेरे को यहाँ से तुम्हारे घर से दूर पड़ता है. So मैंने कहा, how can you just leave like that, leaving me like this? We did not even talk. I made food for you, know. कहते हमारा तुम्हारा बराबर हो गया ना. अगर then we had a conversation. हमने कहा, you have no emotion that I even have washed your underwear with my own hands. You have no emotion left. Then the person gives me an answer. What's the big deal if you have washed my underwear? मैंने भी तो मैं good time दिया bed में. So it was a deal. It got over. So people have really insulted and rejected me so badly कि you know अब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. कोई मेरे को रास्ते में हिजड़ा छक्का बोल दे या कोई मेरे को गुड़ बोल दे, these are jewels of mine. क्या वो बॉलीवुड स्टार्स के जो वाइव्स हैं जी, उनको आइडिया भी है कि उनके हस्बैंड शायद बाइसेक्सुअल है या उनका रिलेशनशिप था आपके साथ? I don't know. I don't know about that. I don't think so. Okay. कोई लड़का थोड़ा ना कि कहेगा कि भैया मेरे साथ रिलेशनशिप था. Okay. But it's okay. उनकी अच्छी जिंदगी है, एक अच्छा उनका परिवार चल रहा है. और पता है क्या, हम तो दुआएं देने के लिए हैं. You know, I to keep on blessing people. मैं चाहता हूँ जहाँ भी हैं खुश रहें. अगर आप उनसे मिलो, माने रेड कार्पेट पे मिलो, मूवी प्रीमियर पे मिलो या फैशन शो के दौरान मिलो, क्या वो आपके पास आते हैं, ओपनली आपसे मिलते हैं? कुछ आते हैं, कुछ लुक थ्रू कर देते हैं. कुछ आते हैं, कुछ लुक थ्रू. मैं खुद ही उस रास्ते पर नहीं जाती जहाँ पे वो लोग आते हैं. आई डोंट वांट टू पास दैट
at that path of their life. क्या आपने कभी उनको ये नहीं बोला हुआ है कि देखो मैं तुम्हारे साथ एक वाइफ की तरह रही हूं या एक गर्लफ्रेंड की तरह रही हूं, व्हाई डोंट यू मैरी मी? I know you want to be in a relationship. Yeah, I want to see. I have also kept karwa chauths for them. Oh my, yeah. So like, एक बार तो मेरा बहुत बड़ा बॉलीवुड स्टार was my into a relationship and I kept karwa chauth for him and मैं भूखा प्यासा बैठा था और ये आ नहीं रहा था. You know, मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. I'm a Krishna conscious person. भगवान ने मेरे को सिक्स सेंस का रिलेशन में वरदान दिया है. So like I started searching और मैं एक डिस्को में गया. पता नहीं मेरे को what happened that miracle that night that I particularly went to that disco. And I saw in the car parking he was screwing a woman. With my own eyes I saw. तब वो स्ट्रगल कर रहे थे कि स्टार बन चुके थे? स्टार बन चुके थे. स्टार बन चुके थे, आपके साथ रिलेशनशिप में थे और एक और लड़की के साथ सेक्स कर रहे थे गाड़ी में. जी, मैंने उनको देख लिया था. ओके, देख के मैं चुपचाप घर वापस आ गई. फिर वो मेरे घर पे आए 4:30 बजे. भाई बहुत शूट देर तक चल रहा था शूट. मैंने कहा ओके दिस एंड दैट एंड देन ही सेड, मैंने कहा इस वक्त तुम कहाँ थे? कहते शूट पे था. सो मैंने कहा ओके एंड आई सॉ विद माय ओन आईज. सो मैंने देन आई टोल्ड आई हैव पुट मेहंदी फॉर यू, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव बीन हंग्री, आई एम प्रेइंग फॉर यू सो मच. Why need to lie? No, but I want to ask you, क्या किसी ने आपको शादी का वादा देकर मुकर गया? Yes, one of the person. In fact, उन्होंने तो ये भी कह दिया था मेरे से कि you can take my sperm and your sperm, we will mix together and we will have a IVF से हम लोग बच्चा कर लेंगे. We will never do a DNA test. And उन्होंने मेरा जो रिलेशनशिप था उसने मेरे को सबसे ज़्यादा दर्द दिया है. वो भी एक एक्टर ही थे जी. बहुत दर्द दिया है उन्होंने मेरे को. मेरे जितने भी बॉयफ्रेंड्स हुए आई थिंक उनमें से मेरा ये वर्स्ट रिलेशनशिप था. कितने साल था ये? आई थिंक 1.5 years ओनली. बट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई मेंटली एंड आई लव्ड हिम सो मच. मैंने उनको दिल से इतना प्यार किया कि एंड यू नो लाइक वो मुंह छुपा के मेरे घर पे आते थे, कोई देख ना ले एंड ऑल. आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड पीपल प्राइवेसी. मेरा कोई भी लिंकअप जो है, कभी आप पढ़े होंगे नहीं न्यूज़? नहीं, कभी नहीं पढ़ा. इनफैक्ट आई थिंक पहली बार हम लोग बात भी कर रहे हैं इसके बारे में. मेरे लिंकअप्स कभी नहीं आए क्योंकि मैंने बहुत रिश्तों को बोला है. मैंने एक अर्जेंटीना में एक शो जरूर किया था, उसमें मेरा लिंकअप अमित सरीन के साथ आ गया था. नमी एंड अमित सर आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स नाउ. सो यू नो अमित सरीन के साथ मेरा एक लिंकअप आया था जो फॉल्स स्टोरी थी. ऑलराइट, बट मेरे जितने भी रिलेशनशिप स्टार्स के साथ हुए हैं, आपने मेरे कभी मेरी स्टोरी सुनोगे कि हम लोग रेड कार्पेट्स भी गए तो उन्होंने एंट्री बाद में करी है, मैंने पहले करी है, मैंने पहले करी, उन्होंने बाद में करी है. तो ये जो फेस पर तौलिया डालते थे या मास्क डालते थे, जो भी डाल के आते थे, वो अभी भी रेलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री काम में? Yes. He is doing well for himself and I wish him all the best. मैंने सुना है कि आप पर कास्टिंग काउच के एलिगेशंस भी हैं. जी. क्या हुआ था? वेल वो तो मेरे पूरा हिंदुस्तान मेरे लिए खड़ा हो गया था. पर देखिए मेरा एक प्लस पॉइंट है, मैं ना मैसेजेस कभी डिलीट नहीं करता हूँ. यू नो आई डोंट नो इट्स देयर इन मी बिकॉज कोई मेरे को ये कह देगी वो तो. ये मेरे दोस्त थे. यू नो सिद्धार्थ, आज मैं इस हॉट चेयर पे बैठ के इतना ओपनली अपने सेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता. ये मेरे दोस्त थे, ये मेरे घर में 5 बार आ चुके थे. इनको मैंने खाना खिलाया. इनके साथ मेरे वैसे कोई संबंध हुए नहीं थे, और अगर होते भी तो मैं बोल देता हाँ हुए थे मेरे इनके साथ संबंध. इनके साथ ये मेरे को इसलिए लगते थे क्योंकि इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था ना बहुत अच्छा था. तो मेरे को बड़ा मजा आता था इनके साथ बैठ के बात करने का. इनको आप 2 ड्रिंक पिला दीजिए एंड देन ही इज ऑल लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वाज वेरी गुड. आई यूज्ड टू लाफ विद हिम. एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वाज इन अमेरिका इन LA, was doing LA Fashion Week, and I get a call from Zoom TV and they said there is a casting couch on you. Who is this guy who put a casting couch on me? He said some Sahil Chaudhary. I said, Sahil Chaudhary is my friend who comes to my house. How dare he says that? And then I went to the YouTube and I saw that he did not speak so much about me. He spoke very good about me.
उन्होंने सदन पांडे के लिए, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, उनके बारे में बहुत बोला था। मेरे बारे में उन्होंने छोटा सा बोला था कि रोहित वर्मा ने भी मेरे को घर में बुलाया और मेरे को इधर उधर हाथ लगाया, इतना उन्होंने बोला था। क्योंकि मैं सदन पांडे से बड़ा नाम हूं, ओके, तो मेरे ऊपर मीडिया का ज्यादा कैमरास घूमे, ओके, और ये स्टोरी दिल्ली टाइम्स ने फ्रंट पेज पे कवर कर ली मेरी फोटोग्राफ्स के साथ, ओके। तो मेरे को बहुत इंडस्ट्री के डिजाइनर्स के फोन आया कि रोहित लेट इट गो, ब्रश इट ऑन द कारपेट। जब कहते लोग पढ़ेंगे भूल जाएंगे, ओके। पर मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी सब कुछ है। मदर्स फॉर मी इज अ मोस्ट सेंसिटिव इशू। माय मदर क्राइड, सो व्हेन माय मदर क्राइड ऑब्वियसली आई हैव टू फाइट। उस जब मेरी मम्मी के आंसू निकले, मैंने साहिल चौधरी की सारी चैट जितनी थी सब इंस्टाग्राम में डाल दिया, सोशल मीडिया में डाल दिया, और मैंने उनके ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया। मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप बताइए, अगर मैंने उनके साथ कास्टिंग कोच किया भी, क्या वो ये बच्चे थे? अरे तुम 8 पैक बनाते हो, तुम जिम जानते हो, जो झापड़ा मारते ना मेरे गाल पे, तुम बार बार, तुम्हें मजा आ रहा था कि तुम बार बार मेरे घर पे चले आ रहे थे। 5 बार आए हो, 5 बार आए हो, सब कैमरास में है। यहां पे रेप नहीं होता है सिद्ध। इफ आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विथ यू, कैन आई फोर्स यू? You're a strong man. You'll give me one slap on my face. What are you talking about? Which country we are saying? Are you kidding me? बस किसी के ऊपर उठ के कह दिया तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे ये जो लड़के हैं, जो मॉडल्स हैं, बेबी कितनी खूबसूरत लग रही हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फिर रात को आते हैं, सुबह कहते कैन यू गिव मी चेंज टू गो बैक होम। मैं तो गुल्लक रखी हुई है, कब सप्लीमेंट लेना पड़ जाए, कब इनके लिए बिजली का बिल भरना पड़ जाए, ऑटो रिक्शा का भाड़ा देना पड़े क्या। It's okay, it's all right. So for me it's okay. They're kids, you know, but also I have never forced anybody for sex. प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में आप इन्वॉल्व हुई हैं? Well, initially I will be very frank with you that I come from a very intellectual family background, a very rich intellectual. My father was the DRM in railways. Born in Allahabad, brought up in Missouri, studied in a very, very good atmosphere. Well, when I qualified NIFTs, like as a designer, I always wanted to get in designing. My father was very against of me to become a designer because I come from a also very orthodox family background. For me, for our family, studies, civil services, engineers, doctors, everybody's filled with that. So my father always wanted me to go in technical line, and I was the black sheep of my family. I was never good in studies. मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत खराब था सिद्ध। मैंने तो वर्मा खानदान का, मैं 60 पे पास हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीजन आ गई मेरी, वरना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल आर लाइक 89-90%। ऑलराइट, सो माय फादर, बिकॉज क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था, तो शायद मेरे को बहुत बुली किया गया घर पे। In fact, you know, I was not knowing why my sexuality is, why do I feel like a woman inside, because I was also raped in my childhood time, because there's a lot of age difference between my father and my mother, all right, and my mother has seen a lot in her life, and I was very horrified. उस टाइम पे ना हम लोग इतने फ्रैंक नहीं थे अपने मम्मी पापा से कि हम ये बात कर दे कि हमारे साथ ये सब हो रहा है घर में। तो जब आपका रेप हुआ उस वक्त आपने मम्मी पापा को बोला? नहीं बोला, बिकॉज nobody would have believed me. और ये किसी my uncle, my real uncle used to do that to me. Okay. How old were you? I was 8 years of age. So he used to drape me in the sari, put hot wax on my body. मेरे को injection से phobias है, because I am very phobia of injection. वो मेरे को ऐसे रखते थे, इंजेक्शन रखते थे, and then he used to rape me, dress me like a woman, put his dick in my mouth, you know, and he used to do all the horrible things. और वो घर आते थे? Yes. And I was very, very horrified to tell my mother, and he said, nobody will believe you. And this went on till 3 to 4 years. And I faced that in my family. And I did not even tell because हम लोगों के इतने बड़े बंगलोज होते थे. We used to have 15 rooms. इतना बड़ा घर होता था. You know what DRM post is, okay? So we used to get big bungalow, big kitchen garden, everything. And you know, हम लोग पापा से एक हफ्ते मिलते नहीं थे. I never sat down with my dad and spoke to him like that.
Papa, this is what I'm facing. And that time, the education was very different. Today's your generation where it is very different. You will be your best friend to your child. And you will first thing you will teach your child what is good touch and bad touch. My daughters are, the elder one 6 years old, she knows it. Exactly. Can I even tell you that when I am also not allowed to enter the room and she's changing, being the father. And I tell her also that I'm not going to enter. She says, no, please don't enter because I'm going to change now. So you understand. So I come from that kind of a background, and I did not even get to speak to my dad till the time, And I think so. I believe that every child goes through a lot of things like that. Some people talk about it, some people don't talk about it. In our case, in my case, I did not even had balls to talk about it. A, I was not good in studies. B, I was never good in academics or anything except for paintings and rangoli, okay, which was all girls ka kaam, and my father was very against of that. So obviously, that kind of a bond was not there between me and my parents. तो उनको कब पता चला कि When I became a star. And you told your dad and No, I went in a Big Boss and I openly spoke about my sexuality. Oh, TV के through आपके माता पिता को पता चला. जी. God. Okay, I spoke about it and my daddy was quiet. Okay. पर वो prostitution racket के बारे में बता I'm रहे थे. coming to that. So that when I came to Bombay and I needed money. All right. So during the Taj time, I used to dress up little feminine and all. One or two times I got picked up from a fair man. In the hotel? No, from the walls of Taj. तो आप वहाँ खड़ी रहती थी? नहीं, खड़ी नहीं रहती थी मैं वहाँ पे ऐसे लोग घूमते थे. अच्छा. वहाँ पे डिस्को होता था वुडूज. हाँ, मैंने सुना है. Yeah, it's a gay club, okay. बहुत रॉकेट डिस्को होता था. तो वहाँ से निकल के 1 or 2 times, I got picked up and I got money also paid. उससे मैंने अपने शायद जो था मैंने अपना डिजाइनिंग का कुछ सामान खरीदा था. All right. But I have no shame. I don't have any regret of doing that because nobody forced me because I wanted to do it. So I did it. अभी as a fashion designer, आपके इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस है? जी हाँ, एक्सेप्टेंस है. जैसे कि मेरे को साउथ बॉम्बे बहुत एक्सेप्ट नहीं करता था पहले because of my bold avatar. But now everybody loves me. Everybody invites me for the big parties. I love social. I'm a very social butterfly. Yeah. I like to go to different parties. I love my brands. I love to be everywhere. But Siddharth, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा. कभी-कभी अकेलापन बहुत महसूस होता है क्योंकि जब मेरे को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, जब मैं अमेरिका से इतना बड़ा काम करके आता हूँ और इतना मीडिया आपको कवर करता है, आप हर मैगजीन की सुर्खियों में बनते हैं, पर जब अपने घर को अकेले खोलते हैं, okay, that's the thing. So I think so, there are people, if I will believe if you are a bisexual and you have got liking for a gay guy, I think so, अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो किसी के सेक्सुअलिटी के साथ, and आप कन्विंस करो, तो I think lot of people won't be so depressed. Lot of gay guys go to lot of mental depression. Have you ever tried खुदा न खास्ता to end your life? Many times. 3 days back. What do you say, yeah? I end my life every day. But what makes me strong? Ji. So I'll tell you what happened. When I had a breakup with my ex-boyfriend, whom I love till today, I love him a lot. I had feelings for him. उसने मुझसे एक बात बोल दिया. उसने ये बोल दिया कि तुम मेरे को ना ऐसे ही पैसे दिखा के महंगी गिफ्ट्स देके you just want to go down in my pants. ये बात मेरे को दिल पे बहुत लग गई क्योंकि उसने मेरे को मेरी नज़रों के सामने ही गिरा दिया. एंड उस वक्त प्रत्युषा committed suicide. You were TV actress. Yeah, she was a very good friend of mine. So I said, it's disgusting to hear this thing. And I wanted to hang myself and I already hung myself. पर मेरी ज़िंदगी में ना 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. मैं, फैशन एंड मेरी कृष्णा डॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे मैं अपना फांसी लगा रहा था तो मैंने देखा मेरी स्कॉटिश स्कर्ट पहनी है जो मैं लंदन से लेकर था. हाँ, माय गॉड, ये तो मैंने पहनी नहीं उस पार्टी में. पहले पहन के मरती, पहले ये पहन लूँ उसके बाद. सो आई मेड फैशन एज माई स्ट्रेंथ. तुम रात के 3 बजे भी आओगे, मैं तुम्हें 10 on 10 तैयार मिलूंगा
with my two ponytails, with my thingies, with my fur coats, because I love myself. रोहित जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, I really hope and I really pray दिल से कि आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, पीस मिले और सच्चा प्यार मिले, बिकॉज आई थिंक डीप डाउन आप सच्चा प्यार ढूंढ रही हैं जी। एंड आई रियली होप, बिकॉज मुझे लगता है कि डीप डाउन आपने इतना देखा हुआ है कि शायद आप सिंपलिसिटी ढूंढ रही है, सिंपल एग्जिस्टेंस। यू नो सिद्धार्थ, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। 4 बजे उठता हूँ, मंगल आरती के लिए जाता हूँ लॉर्ड कृष्णा के मंदिर में, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हूँ। ऑब्वियसली अपने काम को, बहुत कम लोग होते हैं जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, यूपी से या आप नॉर्थ से आइए, अगर फादर इंजीनियर तो सन को इंजीनियर बनना है, फादर डॉक्टर है, सन को डॉक्टर बनना है, दे इम्पोज स्टडीज ऑन द, बट नाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग, पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग द चिल्ड्रन। बट यू नो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को लॉर्ड कृष्णा ने वो दिया जो मेरे को शौक था। आई वॉन्टेड टू बिकम अ डिजाइनर। और पता है सिद्ध, कितने भी तुम खुशियां ले आओ, कितने भी तुम दुख ले आओ, जब क्लाइंट आपको फोन करके बोलता है ना, रोहित यू मेड मी हैप्पी, आई थिंक सो दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू नो गॉड कैन गिव। एंड जब दे अनाउंस योर नेम, जैसे आपने मेरे शोज होस्ट किए, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द इज रोहित वर्मा, you forget all your error, but that is your moment to enjoy. Ladies and gentlemen, presenting ace designer Rohit Verma. God bless you. Thank you very much. And I hope you find what you're seeking. Thank you very much. आपने मेरे साथ जो बात किया है, बेझिझक बात किया है. There was no manipulation. There was purity in what you spoke. I can feel that your heart is so sensitive, and I want you to be happy. Thank you very much, Siddharth. Thank you. Rohit Verma.